Good morning, Afif Sayyed. Good morning, sir. Okay, I am audible. बराबर आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So here there are 6 students so far have come. Okay, धीरे-धीरे number बढ़ रहा है. Number बढ़ रहा है. Slowly and steadily. So we were doing kinetic theory of gases and radiation. All right. Last time, I told you what is first of all radiation? What are the properties of thermal radiation? Remember how many properties we have discussed? रितिका प्रसाद कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस की हमने? How many total properties discussed? Hello? Anyone? Any one of you? How many properties we have discussed? 6. There were 6 properties discussed. After 6 properties, we have defined 3 quantities: A, R, and T. A का formula क्या था? What upon what is A? Any one of you can tell me. Any one of you can tell me. A का formula क्या था? अकेले A का. What upon what? QA upon Q. That's right. It is nothing but QA upon Q. This was QR upon Q. And this was QT upon Q. And then we proved. Kulan, what is A plus R plus T equal to? Kulan Qureshi. Conan Qureshi. Yes, come or not? Alok Gupta, what is A plus R plus T equal to? क्या prove किया था हमने equal to? Murtaja, what was Yes, A plus sir. R plus equal to? So 1. That's right. बहुत अच्छे बच्चे, very nice. Then we have discussed 2 types of body, diathermalous and athermalous. Diathermalous में T का value क्या था? और इसमें what was A plus R का value? इसमें T का value क्या था diathermalous में? 1. 1, that's right. और इसमें A plus R equal to क्या था? 1. 1. 1, that's right. Who was that? किसकी आवाज थी वो? Sir, Vaishnavi. Vaishnavi, too good, very good. I love the way you answer. बस ऐसे आंसर देते रहो. इसके बाद हम करेंगे. अब ना मुझे एक बात बताओ. जब हम गर्मी की छुट्टियों में ये नो गर्मी, when there is very hot sun outside, do elderly people advise us to wear black cloth or white cloth? Any one of you can tell me? क्या बोलते हैं काला कपड़ा? Sir, White. What is the reason of not wearing black? Sir, black sir, because black absorbs the light. That's right. Very good. बहुत अच्छा. Now, based on this idea, we'll understand a body which is called perfectly black body. Perfectly black body. उसको हम लोग बोलेंगे PBB. P dot B dot B. Perfectly black body. Remember, suppose एक body है. उसके ऊपर अगर suppose 500 जूल हीट है और वो अगर 500 का 500 ऑब्जर्व कर रहे हुए तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं, मतलब Q is 500 and QA is also 500 amount of heat it absorbed, then such a body is said to be perfectly black body. So perfectly black body is a body which absorbs all the radiant heat incident upon it. कल इतना बोलोगे तो भी चलेगा. मैंने थोड़ा in all ranges of wavelength and reflects or transmits none ऐसा मैंने लिखा है. लेकिन अगर आप इतना लिखोगे ना, perfectly black body is a body which absorbs all the radiant heat incident upon it. इतना बोलोगे तो चलेगा. ओके, कौन बताएगा मुझे आंसर? मुझे आंसर भार्गेश बोलो. व्हाट इज अ perfectly black body? अपने ओन वर्ड्स में बोलो. Yes, a perfectly black body is the body which absorbs all the radiant heat and
बस 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 इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट उसके ऊपर आनी चाहिए तो वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी। ऑलराइट, अच्छा आप मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ QA एंड Q फॉर अ PBB, फॉर अ PBB, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन QA एंड Q? QA Q से ज्यादा होता है, कम होता है कि इक्वल होता है? क्या है रिलेशन? Sir, equal. इक्वल। एंड व्हाट इज छोटा a का फॉर्मूला? छोटा a का फॉर्मूला क्या है? व्हाट अपॉन व्हाट? QA upon Q. That is right. QA upon Q. Therefore, for a PBB, what is A equal to? Anybody? Anybody? QA upon Q. But QA and Q are equal for a PBB. तो A का आंसर क्या होगा? So For a 1. perfectly black body. 1. That's right. अरे वैष्णवी, superb answer you are giving. Sir, it was Ushna. Who? Sir, Ushna. Good boy. Ushna, very good. Ushna, okay, very good, Ushna. And R equal to T equal to 0. And R. बस उष्णा बोलती रहो प्लीज, एक भी जन बोलेगा तो मेरे को लगेगा पूरी क्लास को आया, और जिसको नहीं आया क्वेश्चन पूछो मेरे को। And therefore R and T equal to 0. फिर है ना, क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग निकल पड़े परफेक्टली ब्लैक बॉडी ढूंढने वर्ल्ड में, यू नो, काली काली जितनी काले कोयला ये वो सब ढूंढा, लेकिन वो लोग को कोई बॉडी में 100% एब्जॉर्प्शन मिलता ही नहीं था। 500 जूल है तो 500 जूल एब्जॉर्ब करने वाली कोई बॉडी नहीं मिली। हाँ, 2 सब्सटेंस उनको रास्ते में मिले, एक का नाम था लैम्प ब्लैक और दूसरे का नाम था प्लेटिनम ब्लैक। अभी क्या होता है, ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये खाली नाम ध्यान में रखना है। These 2 substances were the maximum absorber of all. They were able to absorb 98% of the radiant heat. Actually, in reality 98% ही करते थे, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसको मान लेते हैं कौन सी 2 बॉडीज, लैम्प ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक are considered as perfectly black body because they are the available surfaces on the earth which absorbs maximum कितना परसेंट, 98%। इसी बीच क्या हुआ, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। A perfectly black body is a body which absorbs all the radiant incident upon it. Alright. Therefore, for a perfectly black body, QA and Q are equal. What is QA मतलब? QA मतलब क्या होगा, ओम? QA मतलब क्या? What is the meaning of QA? ओम मिस्त्री? Heat हम लोग observe. बहुत सारे। What is QA means? Heat observe. That is right. That is right. बहुत अच्छा. All right. But for a perfect heat absorbed equal to heat incident, A का formula is QA upon Q. But QA and Q are equal, so this will become Q upon Q. Therefore, equal to 1. But A plus R plus T equal to 1. उसमें से A अकेला 1 हो गया, तो R and T has to be 0. Lamp black and platinum black were 2 substances which are perfectly black. Now, अब समझो, एक था मानुष, there was a person, there was a scientist, there was a फेरी वाला, फेरी लगाता था और उसका नाम था फेरी, उसने परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई थी, उसको बोलते हैं फेरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फेरी वाला एग्जाम में मत लिखना, उसका नाम फेरी था, इंग्लिश में फेरी थोड़ी बोलते होंगे उसको। ओके, सो फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आखिर उसने किया क्या कि वो 100% एब्जॉर्ब करती थी। लेट अस अंडरस्टैंड उसने क्या स्टाइल यूज की। अंडरस्टैंड ना, अपना डायग्राम मैंने ऑलरेडी भेज दिया है आपको, ऐसा डायग्राम बनाना है। व्हाट ही डिड, ही टुक अ डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर, ये इनर वॉल और ये आउटर वॉल। डबल वॉल्ड हॉलो, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, ट्यून, और उसके बाद ट्यून। The space between the 2 walls is evacuated. Then innermost surface is coated with lamp black. अंदर की जो सरफेस थी ना उसको लैम्प ब्लैक से कोट किया, लैम्प ब्लैक से उसको कोट किया गया। ये कोटिंग लैम्प ब्लैक से कोटिंग।
ऑलराइट, ये रही कोटिंग आपके सामने। किसकी कोटिंग है ये? लैम्प ब्लैक की। इसके यहाँ पे उसने एक टाइनी अपर्चर बनाया, एक पतला सा अपर्चर यहाँ से कोई, और अपर्चर के ठीक सामने उसने बनाया कोनिकल प्रोजेक्शन। क्या बनाया? एक कोनिकल प्रोजेक्शन। क्यों बनाया? यू विल अंडरस्टैंड, आई टेल यू। और इस कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर भी यह है काला काला, क्या नाम इसका? कोटिंग जो लगाई उसका, उसका नाम क्या? Lamp black. Lamp black. और प्लेटिनम ब्लैक, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ओके, ये उसकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी तैयार। अब आप बोलेंगे सर 98%, ये 100% कैसे एब्जॉर्ब करता है सर? ये तो 98% ही एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सपोज अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करानी है हीट, उसको यहाँ से एंट्री कराते हैं ट्यूब। यहाँ पे हीट आई, यहाँ पे कितना परसेंट एब्जॉर्ब करेगा? 98%। बचेगा कितना? 2%। 2% सपोज यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे 2% के 98%, फिर यहाँ पे आया, उसका बचे हुए का 98%, उसके बचे हुए का 98%, उसके बचे हुए का, और इस तरह से आफ्टर अ फ्यू रिफ्लेक्शन entire heat get absorbed. So it is based on the idea of 98% at the time of, and reflection के टाइम पे जो भी बचा, फॉर एग्जांपल 100 जूल आया, तो 98 जूल एब्जॉर्ब हो गया, बचा कितना? 2 जूल। 2 जूल यहाँ से यहाँ पहुंचे, 2 जूल का 98%, 1.96, मतलब 0.04 जूल का 98%, फिर उसका बचा हुआ, उसका बचा हुआ, उसका बचा हुआ, ऐसे करते हुए पूरी की पूरी हीट इधर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, बिल्कुल बाहर जाने नहीं देते। इसलिए इसको बोलते हैं फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एग्जाम में क्या करने का? डायग्राम बहुत सुंदर बनाने का और अपने ओन वर्ड में लिखते जाने का। एग्जामिनर का ध्यान डायग्राम पे जाएगा, वहां रहेगा, और सब नामकरण करने का। फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी, डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्फीयर। ऑलराइट, देन दिस इज लैम्प ब्लैक, दिस इज कोनिकल। हाँ, कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों? आखिर कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों? यू नो, कोनिकल प्रोजेक्शन ना होता, लेट अस अंडरस्टैंड, अगर कोनिकल प्रोजेक्शन ना होता तो ये वाली लाइन होती, ये वाली लाइन होती, तो ये यहाँ से यहाँ आता, यहाँ पे टकराता, यहाँ पे कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता? 98%। बचा हुआ 2% वापस पतली गली से निकल जाता। तो जिस पतली गली से आया, उसी पतली गली से 98% एब्जॉर्ब होने के बाद 2% निकल जाता। तो ये बॉडी कोनिकल प्रोजेक्शन, व्हाट इट डज, यू नो, इट अवॉइड्स बैकवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट। इसलिए इट एंश्योर्स दैट इट डजंट गो इन द सेम डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में जाए। तो पर्पस ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन इज टू prevent backward reflection of incident heat. Is that clear? Konan Qureshi, are you there? Konan, good morning, are you there? Konan Qureshi. Yes, अरे है sir. कि नहीं है? कोनन, कौन सी बॉडी हमने डिस्कस की अभी अभी? कोनन, अरे कोनन, आर यू देयर और नो? कुछ फायदा नहीं है क्लासेस ज्वाइन करने का, मतलब ये नहीं कि यू विल स्कोर। यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग वर्क, यू हैव टू आंसर। Second body, क्या, कौन सी बॉडी एब्जॉर्ब है? कौन सी बॉडी हमने डिस्कस की अभी अभी? बोलो कोनन कुरैशी। Paris perfect black body. किसकी? नेम ऑफ द साइंटिस्ट? Paris perfect हाँ? black body. क्या नाम? नेम रिपीट अगेन। चलो इसके बाद we'll understand some terms. क्वेश्चन लिखो, जो मैंने नोट्स भेजी है ना उसके हिसाब से ऐसा लिखो, एक्सप्लेन द टर्म्स। टाइटल लिखो एक्सप्लेन द टर्म्स। ये जगह छोड़ो परफेक्टली ब्लैक बॉडी वाली के लिए, जगह छोड़ो उतना, और उसके बाद में लिखो एक्सप्लेन द टर्म्स। नंबर 1, एमिसिव पावर। नंबर 2, emissive power
of a perfectly black body, PB. Number 3, coefficient of emission or emissivity. Okay, so let us understand one by one. Emissive power, मुझे एक बात बताओ, every body possesses some heat energy. देखो आज हम लोग भी बुखार नहीं होता है तो कुछ टेम्परेचर रहता ही अपना, ऐसा नहीं खाली बुखार के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है when we are having fever, right? Every body, what it does, it emits heat to the surrounding. हम लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग को हीट एमिट करते रहते हैं अपनी बॉडी से, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है हीट की. अगर हम लोग एमिट करते जाए तो लास्ट में ठंडी हो जाएगी बॉडी, विल गो अप, राइट? तो एवरी बॉडी emits some heat. The ability of a body to emit heat is called emissive power, but this is not the definition. How much able a body is to emit यानी क्या मालूम है? Emit के 3 मतलब है. एक तो emit equal to radiate equal to give out. All three being the same thing, but is not equal to transmit. ये बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है heat transmitted and heat emitted both are same. ऐसा नहीं है, ये किसी बुक में एक्सप्लेन ही नहीं किया है. कहीं पे भी बच्चे को ट्रांसमिटेड और बस सब याद हो जाता है, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन बोलते हैं ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसमिटेड एंड हीट एमिटेड, बोलते सेम है. नो, आई विल एक्सप्लेन यू. मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बाद में किसी एक बच्चे को पूछूंगा कि तुम बताओ क्या डिफरेंस है. ओके, जो मेरा बात सुनेगा ध्यान से वो मुझे आंसर देगा या देगी. ओके, एमिट. The ability of a body to emit the radiant heat to the surrounding is called emissive power, but that is not the definition. Definition is based on this formula. Emissive power equal to, ये formula list में आएगा, Q upon AT. Q is what, देखो emissive power के साथ Q है ना, इसलिए ये Q अभी हीट इंसिडेंट नहीं है. हमने अभी Q का क्या नाम लिया था, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, एक ही टाइम QA upon Q. That Q was heat incident on the body, but this Q is heat emitted by a body. Heat emitted or radiated or given out. अब जो बोलना है वो बोल सकते हो, और given out by. He is not. T के साथ अगर Q है तो that is heat given out. A is area and T is time. A is area, T is time. Okay, मुझे आंसर देना, मुझे आंसर फास्ट देना. विधि, what is the formula for capital E? So Vidhi Q Bhatt. upon it. What is Q in that? So Q is the emitted heat which is given out by the body. That is right. And what about A and T? Sir, A is area and T is time. That's right. अब सुनो इसकी definition. It is defined as emissive power की definition है. Emissive power, amount of radiant heat emitted per unit area, per unit time from the surface of a body at a given temperature. From the surface of a body at a given temperature. For example, suppose ये body है, ये suppose 800 केल्विन पे थी और उसका मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिया, कितना 1 मीटर स्क्वायर, और 1 सेकंड में देखा कि ये कितनी देर की मालूम है, 8 से 8 जूल. तो इसका एमिसिव पावर हो जाएगा, और एमिसिव पावर हो जाएगा 8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड. बट दिस 8 जूल इज एट व्हाट टेम्परेचर? एट 800 जूल. अगर 800 का 1000 जूल होगा तो एमिसिव पावर होगी चेंज.
800 का 500 जूल होगा, एमिसिव पावर विल चेंज. तो एमिसिव पावर इज एट ए सर्टेन टेम्परेचर. टेम्परेचर ज्यादा तो एमिसिव पावर भी, टेम्परेचर ज्यादा तो ज्यादा. 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 That's right. So what is emissive power का definition? It is defined as the amount of radiant heat emitted per unit area, per unit time from the surface of a body at a given temperature. At a given temperature. चलो ये देखते देखते पूछता हूं मैं. Okay. Prashant Shetty, what is the formula for emissive power? Hussain Dalginawala, what is the formula for emissive power? Q over 80. Q upon 80. That's very good answer. अच्छा कोई मुझे बताएगा what will be unit? What will be unit? Unit क्या होगा इसका? हीट का यूनिट होता है जूल्स. एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. समय का होता है सेकंड. And joule per second is also known as what? Joule per second is also known as what? Afif? Afif Sayyed, Ushna, Vidhi. Joule per second is known as what? अरे power यार. Heat per unit time, work done per unit time is called power. So what is the unit? Joule per second के बदले? So what? That's right. Watt per meter square. All right. So ये हो गया emissive power. Okay. And now come to emissive power of a perfectly black body. Remember, definition exactly same, but from a perfectly black body is called emissive power. बस इतना बोलना है. emissive EB का मतलब emissive power of a perfectly black body. कैपिटल E का मतलब emissive power of any other body. अब मुझे एक बात बताओ, किसका emissive power ज्यादा होगा? ब्लैक बॉडी का या ऑर्डिनरी बॉडी का? कौन सी बॉडी विल एमिट मैक्सिमम हीट if both are at the same temperature? अपने ओन कॉमन सेंस से बोलो चलेगा. सर ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी विल, अरे ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर है, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है. आई एम टॉकिंग ऑफ एमिटिंग. Which body will emit the maximum amount of heat? Black or ordinary? हाँ? जो white होगी. मतलब जो ऑर्डिनरी बॉडी होगी वो ना. और कोई आंसर बोलो ना यार, कुछ तो बोलो, कोई भी बोलो चलेगा. कौन सी बॉडी ज्यादा हीट देगी? ब्लैक बॉडी देगी या ऑर्डिनरी बॉडी देगी सराउंडिंग को? Sir, black body. सब black देगी. ब्लैक देगी? अरे ब्लैक तो एब्जॉर्ब करती है बेटा. कैसे ब्लैक बोल रहे हो? वो तो बताओ. चलो मेरे को आइडिया दो. व्हाई ब्लैक बॉडी विल गिव मोर हीट? हाँ बोलो बोलो अफीफ. व्हाई विल इट गिव मोर हीट? So it's absorbing more heat than a white body, so that's why it should emit more heat. ब्यूटीफुल. आई लव द आंसर. ये लेट मी टेल यू, 10-20 साल में एक स्टूडेंट ये आंसर देता है. सबको लगता है अरे एज फार एज एमिट करने की बात आएगी तो ब्लैक बॉडी थोड़ी एमिट करेगी. व्हाइट ब्लैक बॉडी तो एब्जॉर्ब करने वाली चीज है, वो एमिट नहीं करेगी. एमिट भी ज्यादा वो इसलिए करती है. क्यों? क्योंकि उसने एब्जॉर्ब भी ज्यादा किया था, इसलिए हीट तो उसके पास ज्यादा है. एग्जांपल देता हूं मैं. वेरी गुड आंसर अफीफ. आई लव योर आंसर. देखो, सपोज एक ऑर्डिनरी बॉडी और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी. इसके ऊपर आई 100 जूल, इसके ऊपर भी आई 100 जूल. दोनों के ऊपर सेम जूल लिखी है. इसने सपोज 70 जूल एब्जॉर्ब किया. इसने कितना एब्जॉर्ब किया? इसने कितना एब्जॉर्ब किया? 98. परफेक्टली ब्लैक है. So 100 98. जूल में कितना? 100. अब एमिट करने की बारी आई, यानी अब सराउंडिंग को देने की बारी आई, तो जिसके पास ज्यादा होगा वो एमिट भी ज्यादा करेगा ना. ये कड़का इसने 30 जूल पहले ही खो दिए, तो ये एमिट क्या करेगा? इसलिए इट विल एमिट हीट, बट इट विल नॉट एमिट, दिस विल एमिट मोर हीट बिकॉज इट हैज एब्सॉर्ब मोर हीट. इसलिए रिमेंबर, अ ब्लैक बॉडी is not only a good emitter, it is a good not only a good absorber, but it is good emitter.
because it emits more, because it absorbs more, therefore it emits more to the surrounding. Black body is the best emitter compared to any other body, provided the two bodies are at the same. Provided the two bodies are at the same. Anybody? Temperature. That's right. Provided the two bodies are at the same temperature. इसलिए मैं कभी-कभी स्टूडेंट को है ना ऐसा बोलता हूँ, all the students, you know, ये सब स्टूडेंट, सपोज ये अफीफ, ये कोनन कुरैशी, ये उष्णा, ये जीतू, ये मुर्तजा एंड दागिना, ये सब, all these should be like a perfectly black body. All of you. आप बोलेंगे सर क्यों? What you are talking about? Because whatever I speak, यहाँ से मेरे जो साउंड वेव्स निकलते हैं, यहाँ से जो मेरे साउंड वेव्स निकलते हैं, you assume that they are incident heat upon you. What you should do if you are a perfectly black body? What do you do? मेरे जितने साउंड वेव्स निकले उसका एब्जॉर्ब कितना करोगे आप लोग? 100%. 100%, पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्ब करोगे. Suppose there is a one student who is sleeping in the morning. तो उसके पास एब्जॉर्ब कितना होगा? उसके पास एब्जॉर्ब नहीं होगा. तो एमिट करने की बारी आएगी, जब एमिट करने की बारी आनी, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बॉल, तो जिन्होंने एब्जॉर्ब ज्यादा किया होगा वो एमिट करेंगे, फटाफट एमिट करेंगे, मेरे को आंसर देंगे सर ये. और ये जो सोने वाले बच्चे हैं, ये सोने वाले बच्चे ने एब्जॉर्ब नहीं किया था, इसलिए वो लोग एमिट भी नहीं कर पाएंगे. इसलिए ऑल द स्टूडेंट शुड बी लाइक अ, बताओ क्या बोलोगे इसके आगे? शुड बी लाइक अ Black body. Black Black body. perfectly black body. Should be like a perfectly black body. All right. तो इसको ध्यान में रखना. अब आता है coefficient of emission, emissivity. Remember, A का फॉर्मूला था QA by Q, R का फॉर्मूला था QR by Q, T का फॉर्मूला था QT by Q, but E का फॉर्मूला QE by Q नहीं है. It is not this. It is definitely not this. E का फॉर्मूला is E upon EB at. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो भूल जाते हैं. एक बात कोई बताएगा, व्हाट मस्ट बी डेफिनेशन ऑफ ये अपने मन से? रॉन्ग तो रॉन्ग, आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू. इसकी डेफिनेशन कौन बोल सकता है? देख के इसको, है कोई माई का लाल? अरे बोलो ना विद्या. ऊपर क्या एमएसयू पावर, नीचे एमएसयू पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बोल दो. और ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन. उष्णा बोल दे, कोई भी बोल दो, कोई भी. Sir, ratio of emissive power of a body and Yeah. emissive power of perfectly black body at same temperature. That's it. 100% right. 100% right. So that's what. So coefficient of emission is defined as the ratio of emissive power of a body to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature. And remember, for a BBB, E equal to 1, क्योंकि ऊपर भी EB, नीचे भी EB. So for a perfectly, not only E is 1, even A is 1. ये ध्यान में रखना. A and E both are equal to 1. And what must be unit of छोटा E? छोटा E का यूनिट क्या होगा बोलो? छोटा E का यूनिट क्या होगा? No unit. No unit. Ratio of same quantities. ऊपर भी emissive power, नीचे भी emissive power. इसलिए it won't have any unit as such. I hope that's clear. Now इसके बाद हम लोग करेंगे एक theory which is called Prevost theory of heat exchanges. उसका मैंने आज सुबह मैंने फोटोग्राफ भेजा है, अभी मतलब थोड़ी देर पहले. हाँ, write down. Explain Prevost theory of heat exchanges. ये सब नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आपको मजा आएगा पढ़ाई करने में. खाली लेक्चर अटेंड किया, फोन के अंदर रखा, फोन गायब हो गया, फोन का डेटा उड़ गया,
बोलेंगे सर वो क्या हमने कॉपी नहीं किया था. नो यूज. आप इतना एक्चुअली इंटरेस्ट से जो पढ़ाई करेंगे ना, द वन हु विल टेक एंथुसियाज्म, इंटरेस्ट, लेट मी राइट, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाएगा खुद, उसको प्रॉपर समझ के लिखेगा, देन यू नो, आई डोंट नो, ऐसे करना चाहिए पढ़ाई. प्योर थियरी. सर आप कितना भी बोलो, आप कितना भी बोलो, हम लोग रात को जो धमाल करते हैं और सुबह नींद आती है जब आप आते हैं, तो ऐसा मन करता है आप काय को पढ़ा रहे हैं. आपको अच्छा लगता है सब, हम लोग को मजा नहीं आता है. एम आई राइट जीतू? जीतू, ओ जीतू, Yes, sir. एम आई राइट और रॉन्ग? सुना ही नहीं था क्या बोला मैंने, इसलिए मालूम नहीं उसको. राइट और रॉन्ग? चलो एनीवे, नाउ प्रीवियस थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज. प्रीवियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ अजीब सी थियरी दे दी. उसने क्या बोला मालूम है? ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर above absolute zero emit and absorb heat radiation simultaneously. Emit भी करती है, absorb भी करती है radiation simultaneously in all directions at all times. मतलब बेसिकली उसका कहना ये था कि चाहे कोई भी बॉडी हो, गर्म बॉडी हो, ठंडी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, वो हीट एब्जॉर्ब भी करती और हीट एमिट भी करती. खाली एक कंडीशन है, उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा होना चाहिए. सब बोले क्या पागल जैसी बात करता है, क्या हीट एब्जॉर्ब और एमिट दोनों करेंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में ये है ना कि गर्म बॉडी होगी तो इट विल एमिट, ठंडी बॉडी होगी तो इट विल एब्जॉर्ब. लेकिन उसने बोला नो, गर्म हो या ठंडी हो, कुछ भी हो, एब्जॉर्ब एमिट, एब्जॉर्ब एमिट, एब्जॉर्ब एमिट साइमल्टेनियसली. खाली एक ही कंडीशन है, टेम्परेचर हैज टू बी अबव व्हाट? एनीबॉडी? 0. अबव जीरो नहीं, अबव एब्सोल्यूट जीरो, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए. जीरो मत बोलना, ओके? नो, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड. फिर लोगों ने बोला अच्छा एक बात बता, एक हॉट बॉडी, यहाँ लिखता हूँ हॉट बॉडी, एक है कोल्ड बॉडी, और एक है ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर इज सेम एज दैट ऑफ द सराउंडिंग, नाइदर हॉट नॉर कोल्ड बट अ बॉडी व्हिच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो ये लोग भी अगर एब्जॉर्ब एमिट साइमल्टेनियसली करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर तो बता. उसको पूछा, प्रियोस को एक खोपचे में लेके गए और बोले बता हॉट बॉडी ठंडी क्यों होती, कोल्ड बॉडी गर्म क्यों होती, और क्यों ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर सेम एज सराउंडिंग रहता है उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता. किसको लेके गए? किसको गांव वाले लेके गए? अरे बोले ना, प्रीवॉस को लेके गए. कहाँ पे लेके गए? खोपचे में लेके गए. ये सब लिखना नहीं है, ऑप्शनल ध्यान से. हॉट बॉडी, बिकॉज हॉट बॉडी का मतलब क्या? जिसका टेम्परेचर इज सेम ग्रेटर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग. व्हाट इज कोल्ड बॉडी? जिसका टेम्परेचर इज लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग. एंड व्हाट इज द बॉडी व्हिच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम? उसका टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट ऑफ द सराउंडिंग. ये डिफरेंस हो गया. हॉट कब बोलते हैं बॉडी को? जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा. कोल्ड कब बोलते हैं? जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम. और थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी इक्वल. इसने क्या बोला? बीइंग हॉट इट विल एमिट मोर हीट. एमिट एब्जॉर्ब तो करती है बट इट एमिट मोर हीट एंड एब्जॉर्ब्स लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग and absorbs less heat from, therefore net exchange of heat is away from the body. Net exchange of the heat is away from the body, therefore there is a fall in temperature of the body. Consider a cold body. Even this emit and absorb, but being cold it absorbs more heat and emits less heat, and therefore net exchange of heat is where, क्या लिखूं यहाँ पे? इधर अवे लिखा था. Net exchange of heat is where? Anyone? समझ ही नहीं आ रहा ऐसा लिखते. Net exchange of heat of the bodies towards the body. All right, towards the body, and therefore there is a rise in temperature. A body which is same as the temperature is same as the surrounding. Even this body absorbs and emits, but
being at the same temperature, whatever it absorbs, the same it emits, the same it emits. And therefore, there is no net exchange. No net exchange of heat between the body and the surrounding. And therefore, temperature of the body remains constant. Such a body is said to be in thermal equilibrium. इस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग? As if body is in thermal equilibrium. एक बार फिर से बताता हूँ. देखो, हम लोग कर रहे हैं Prevost theory of heat exchanges. As per which all bodies at all temperature above absolute zero emit and absorb heat radiation simultaneously in all directions at all times. खाली एक ही condition है. Temperature has to be what? Anyone? Temperature has to be what? Above absolute zero. That's right. So उसने बोला consider a hot body. A hot body is a body whose temperature is more than that of the surrounding. Even this body emits and absorbs, but being hot, it emits more heat and absorbs less heat from the surrounding. Therefore, net exchange of heat is away from the body, and therefore there is what? There is rise Away. of temperature. Huh? Therefore, there is rise of temperature or fall of temperature. Hot body का temperature Heat थोड़े दिन exchange. बाद, हाँ? क्या? There is suppose पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो after some time it will become more than 100 or less than 100? Less than. Less than, because it is going away from the body. Consider cold body. Even this body absorbs and emits, but being cold, what it does? क्या ज्यादा कर रहा है? ज्यादा क्या कर रहा है वो? Absorb. More heat and emits less heat. Therefore, net exchange of heat is towards the body. Therefore, there is a rise in temperature of the body. Now, consider a body whose temperature is same as that of the surrounding. Even this body emits and absorbs, but being at the same temperature, whatever amount of heat it emits, the same amount of heat it absorbs from the surrounding. Therefore, there is no net exchange of heat between the body and the surrounding. And such a body is said to be in thermal equilibrium with the surrounding. And hence, temperature of such a body remains. Anyone? Temperature of such a body remains? Same. Yeah, same, yeah, constant, जो भी बोलना है. Okay, I would like Jitu read out this. Jitu, ये पूरा Prevost theory पढ़ डालो एक बार जोर से. हाँ सर. Everybody से start है इसका आंसर. So everybody emits and absorbs heat energy simultaneously at all temperature above absolute zero and at all times. Hot body. Consider a hot body. Being hot is also absorb and emits heat, but being hot it emits more heat than what it absorbs, and therefore net flow of heat is always away from the body, and therefore temperature of the body falls. Cold body. Very good. Consider a cold body. Being cold, it also absorbs and emits heat,